Okay, guys, very good afternoon. So in the previous class, we understood the combination reaction, right? The combination reaction and the decomposition reaction. And in today's and in this class, we are going to learn about displacement reaction and double displacement reaction. Both of them are very easy and interesting to understand. I have told you this is the very foundation of what you are going to learn in your 11th grade. There you will learn number of chemical reactions if you take science or bio, okay, maths or bio, whatever you take, you will get chemistry there, and you will learn number of chemical reactions. And if you're not clear, if you are very clear here how the two elements join together, how the compound breaks down into two different reactants, okay, as a product, okay, compound एक reactant okay, कैसे दो product में divide होता है, break होता है, okay, that is decomposition reaction. How electrons are shared, okay, and on what basis, which is more reactive in nature. So if you are clear with these small and small concepts, you are going to love chemistry in your 11th and 12th grade. Trust me, this is your foundation. As much as you read right now, you will enjoy next year only. Okay, so in the last class we discussed decomposition reaction, और उसमें से मैंने एग्जांपल लिया था कि आपकी हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिकॉज जो भी हम खाना खाते हैं वो कंपाउंड की तरह ले रहे होते हैं, इकट्ठा ले रहे होते हैं, मिक्स ले रहे होते हैं, और वो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में ब्रेक होना, तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाना, मतलब कि ब्रेक होना, कई सारे पार्ट्स में ब्रेक होना। एक और तरीका इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि कई डिग्रेडेशन प्रोसेस, मतलब कि जहां पे ब्रेकिंग हो चीजों का, बड़े जैसे पत्थर का ब्रेक होकर छोटे छोटे स्टोन्स में बन जाना, तो वैसे ही many degradation process takes place in nature surrounding us. And guys, please keep yourself muted, just a second. Okay, so many degradation process take place in our in the nature surrounding us. And for example ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है कि वो डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और किस उसके मतलब जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो रिएक्टेंट्स के, मतलब कई सारे प्रोडक्ट निकल गए, जैसे मैन्योर हो गया, बायोगैस का एग्जांपल मैं लेता हूं, बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल, मतलब कि जैसे हमने डिकम्पोस्ट लीव्स हो गए, काउडंग हो गया, वाटर हो गया, वो मिक्स करते हैं एक जगह पे, डिकम्पोस्ट बनाते हैं, और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करके उसको मतलब कि उसको डिकम्पोज करते हैं, और हमें मैनोर बायोगैस की फॉर्म में मिलता है। देख लो यहाँ पर एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, now in this class we are going to learn further, and we are going to start with the displacement reaction. Okay, and we are starting with the displacement reaction. And as the name says, displacement, something is going to be displaced, and so it is going to be very easy, and I'm going to take as many as examples as I can, so to make it easier for all of you. Okay, so in displacement reaction, before I go ahead, I want to take a just wanted to hear from all of you, if you are clear till here, if you are clear with the combination and decomposition reaction, so we can go ahead with the displacement reaction, if everyone is confident with that. Yes, can we go ahead? Perfect. Okay, great. Okay, in displacement reaction, as the name says, okay, more active element डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट, मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें जो वो एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, दैट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। आई एम नॉट सेइंग रिप्लेस, पोजीशन रिप्लेस होगा, बट वो क्या करेगा कि मान लो कोई एक कंपाउंड दिया है, उसके साथ उसकी रिएक्शन किसी एलिमेंट के साथ कर दो, अब जो थर्ड एलिमेंट है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो वो डिस्प्लेस करेगा किसी ना किसी कंपाउंड की, किसी ना किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और अपनी जगह ले लेगा वहां पर, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, let's take an example. Okay, so I'm going to use the colored blocks here. Suppose यहाँ पर red is the, okay, suppose यहाँ पर this A is one element, okay, these two are one compound, okay, these two are compound। अभी मैंने सिंपल से पहले एक बार मैं ऐसे लिखता हूं, आई एम अज्यूमिंग A is more reactive than B,
आई एम एज्यूमिंग ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। कैसे? मान लो ये ए है, रेड वाला ए है, ब्लॉक ए है, बी और सी का एक कंपाउंड दिया हुआ गया है, बी एंड सी टुगेदर एक कंपाउंड दिया गया है, एंड आई एम सेइंग हियर ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ओके, तो यहां पर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव वो डिस्प्लेस करेगा। अब कैसे डिस्प्लेस होगा समझते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। तो A is more reactive than B. तो what is going to happen? A displaces B. क्या करेगा? A B को डिस्प्लेस कर देगा, B की जगह में A आ जाएगा, B की जगह में A खुद पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बाद कैसा दिखेगा वो? ये ऐसा दिखेगा। जो यहाँ पर ब्लू, येलो और ब्लू कलर के ब्लॉक्स साथ में थे, अब कौन हो गया? येलो, रेड एंड ब्लू कलर वाले बॉक्स एक साथ में हो गए, बिकॉज A was more reactive than B एंड सी। यहां पर बी क्या रह गया? अकेला बन गया, बच गया। यहां पर कौन सा आ गया? अभी AC came together and B left alone. So this is our displacement reaction. This is our displacement reaction where element which is more reactive than the other element displaces that. Okay, an element which is more reactive, an element displaces the other element if element A is more reactive than the element B. Is this clear? Easy है काफी। क्लियर है? तो फिर मैं और सारे एग्जांपल्स लूं और समझाएं, थोड़ा एग्जांपल्स के साथ समझाएं। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, ग्रेट। Let's take some examples and understand it. Okay, before we go ahead, how do you know I am saying A is more reactive than B? Then how do you know which element is more reactive? कैसे पता चलेगा कि which element is more reactive? How do you know that? Yes, anyone? Yes, can anyone tell me? How do you know which element will be more reactive? Yes, guys, anyone? How would we know which element is more reactive? Okay, that's great. Akash is saying valency. Very good, Akash. Can you elaborate more? How valency will tell us which is more reactive? Akash, do you want to take this chance and tell everyone how valency is related to the reactivity of element? Yes, anyone? Yes, guys, quickly. Anyone? It's okay. There is no right or wrong answer. We can share whatever we have in our mind. How will we define which element is more reactive? Okay, okay. Okay, that's okay. That's completely okay. So let me tell you. So for metals, we know that one character as electropositive, right? For metals, we know one character as electropositive. Okay, so I'm going to share my share the video here. Okay, and you're gonna watch. Okay, we have one response from Lakshmi. Through valency, we can understand is electropositivity more or not, and through that we can understand how much related to that reactive that element is. Very good, Lakshmi. Thank you so much for sharing. Let's see the video here. Okay, that I'm going to share. We'll understand more about this. Okay, so I'm stopping this one, and I'm going to share the other video. Okay, and here I'm going to pin it. And I think you can see this. I think everyone can see this now. Can everyone see this? See the video here? Can everyone see the video now? The co-host video? Yes? Okay, Dilip can't see it. I think now you are going to see it. Can you see it now, Dilip? Can you see it now? Okay, that's great. Chaliye. So metals is about electropositive. Electropositive होने का क्या होता है? Tendency to
lose electrons, right? तो जितना ज्यादा metal will be more which if element is more electropositive, then it will have more tendency to lose electron, then it will be जल्दी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब क्या करेगा वो, इट विल बी मोर रिएक्टिव, इट विल बी मोर रिएक्टिव, बिकॉज वो टेंडेंसी है उसकी ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब इट विल फॉर्म बॉन्ड, क्या करेगा वो बॉन्ड बनाएगा, इट विल मेक अ बॉन्ड, टू मेक अ बॉन्ड, ओके, it will make a bond and so it will be more reactive। बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या करेगा, जल्दी से लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, राइट। नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा, इफ अ नॉन मेटल इज देयर, so you should know that metals are more reactive than non-metals, metals are more reactive than non-metals, you should know that first, okay। or inert gases, they are not reactive, they are not reactive at all, they don't even react, non-reactive, electronegative, electronegativity, tendency to attract the electrons, right, tendency to attract the electrons, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, it will be more reactive, जितना ज्यादा वो जल्दी अट्रैक्ट कर पाएगा, मोर रिएक्टिव, जितनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट कब करेगा, जब उसको कम अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब उसको कम अट्रैक्ट करेगा, इट विल ऑल्सो मेक अ बॉन्ड, मेक अ बॉन्ड, ये भी जल्दी बॉन्ड बनाएगा, राइट, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और याद रखना, metals are more reactive than non-metals, okay, metals are always reactive than non-metals, metals ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इज दिस क्लियर हुआ guys, is this clear? This is just a revision only, you have done this before also, right, this is just a revision, you have done this before also, right, so metals are more reactive than non-metals, and now let's understand which element is more reactive, ये भी देख लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेके, ठीक है। So I can rub this, I will rub this now and we'll see which are, okay, I will share this on the group later, okay, is this clear guys, everyone, is everyone clear with this? Okay, perfect. Okay, great. Now, चलिए बात करते हैं रिएक्टिविटी की थोड़ा सा और। ग्रुप 1 के एलिमेंट मैंने लिख लिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट, ठीक है, एंड दोज आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिख देता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंथियम और ये हेरियम। ऐसे ही मैं ग्रुप सपोज करो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लिख देता हूं कुछ, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम। If you have done the revision electropositive and electronegative, then I don't have to explain it again and again, okay, because we have done this before, electropositive, electronegative, which will be more क्योंकि जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तो फटाफट वो बॉन्ड बना लेगा, जल्दी से बॉन्ड बना लेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। जिसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा उसको टाइम लगेगा, उसको वो एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसको 2 एलिमेंट की जरूरत है, तो उसको टाइम लगेगा, तो उसको उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी।
रिएक्टिव, कौन जल्दी से बॉन्ड बनाएगा, कौन जल्दी से रिएक्ट करेगा, विच एलिमेंट विल रिएक्ट फास्टर, सो द रिएक्टिविटी विल बी मोर। जो एलिमेंट जल्दी से रिएक्ट कर लेगा उसकी इलेक्ट्रिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होते हैं, नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होते हैं, ग्रुप 18 इज नॉन रिएक्टिव, ओके, दे आर नॉन रिएक्टिव। अब देखो, तो आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी increases down the group, electropositivity increases down the group। तो electropositivity increases down the group मतलब क्या होगा, more reactivity, what will happen, more reactivity। क्यों, क्योंकि देखो नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को कितना होल्ड कर पाता है अपने शेल में। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, लिथियम ले लो और पोटेशियम ले लो, चलो लिथियम और पोटेशियम का ले लेते हैं। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3 होता है, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 19 होता है, समझो जरा 19 होता है। सपोज ऐसे समझो, तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, 1 और 2 और 1, तो वैलेंसी हो गई 1, 1 लूज करना है उसको, ठीक है। लेकिन पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, 2, 8 and 1 more 8, ठीक है, समझना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और एक और आ जाएगा और लास्ट में 1 बचेगा, ठीक है। अब समझो जरा, जस्ट अंडरस्टैंड। देखो अब इसके लिए न्यूक्लियस को इतनी सारी सेल में एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके पाना मुश्किल हो जाएगा ना, इसका तो और जल्दी लूज करेगा, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो जल्दी कौन लूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसको होल्ड करके पाएगा बिकॉज पास में है। बट इसके लिए तो और डिफिकल्ट हो जाएगा ना लूज होल्ड कर पाने में, तो इट विल lose the electron easily, lose the electron easily, it will lose the electron easily, जल्दी लूज कर देगा बिकॉज इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ही नहीं कि इसको इतनी दूर तक होल्ड कर पाए, राइट। तो पोटेशियम विल बी मोर रिएक्टिव देन द लिथियम बिकॉज पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करके दूसरा किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। इज दिस क्लियर अजीत एंड एवरीवन? कैसे बोला मैंने डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ेगी रिएक्टिविटी, इज दिस क्लियर? अभी चलेगा पक्का ना, सही है, मतलब जबरदस्ती नहीं बोलना, नहीं सुनना है तो मतलब पूछ सकते हो, यू कैन आस्क, डेफिनेटली आस्क, ओके। सो यहां पर क्या हो रहा है कि हियर द लिथियम न्यूक्लियस विल होल्ड द 1 इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज उसका फोर्स ज्यादा रहेगा, राइट, ज्यादा रहेगा। हियर इतनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए तो उसका जो होल्डिंग न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लूज, उसको होल्ड नहीं कर पाएगा तो लूज कर देगा। तो पोटेशियम विल बी मोर रिएक्टिव देन द लिथियम, ओके। I will take a picture of it and I'll share this on the group later, okay। चलो we can go ahead, so I hope you will remember। so down the group जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप मोर रिएक्टिविटी, याद रखना, and across the group less reactive, and across the group less reactive, okay। down the group more reactivity and across the group less reactive। so there is a, I'm now going to put this off, video off, okay, and go back to the PPT again, and I'm going to show you this series only now, just a second। okay, here we come, and here is the series that I have prepared for all of you, reactivity series of metals, if you can see clearly,
reactivity series of metals. Okay, reactivity series of metals. What does it mean? मतलब कि देख सकते हो, यस आकाश, जिसको कम से कम इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे नॉन मेटल्स में, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी रहेगा, फटाफट गेन कर लेगा, समझ रहे ना, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बट जिसको लूज करना है उसके लिए कम से कम लूज करना पड़े तो जल्दी से लूज कर देगा, राइट, और तुरंत रिएक्टिव, ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तुरंत बॉन्ड बना लेगा वो। बाकी जिसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो वो ढूंढेगा पहले कि किसको 2 चाहिए मुझसे, 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो उसको टाइम लगेगा, राइट, तो इट विल बी, दैट विल बी लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर ये है, तो डाउन द ग्रुप ये रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, याद रखना, ये जो मैंने प्रिपेयर किया है, लिस्ट प्रिपेयर किया है, यहाँ पर ये मोस्ट रिएक्टिव का है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव वाला है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। ये सीरीज आपको याद कर लेना है, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो हियर इफ यू कैन सी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, याद रखिएगा, पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम हो गया बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको सोडियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, दैट इज व्हाई सोडियम इज द, कैन यू सी, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, इसलिए सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन, बिकॉज अगर केरोसिन के बाहर रखेंगे तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके बर्न हो जाएगा, फायर आती है, ठीक है। एक और मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपने कभी देखा हो कि रास्ते में जो थोड़े से बाबा लोग होते हैं, दे शो द मैजिक, दे शो द मैजिक, और मैजिक में क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि नींबू के जैसे जो लेमन होता है, लेमन नींबू, उसको हवा में खोलते हैं और वो उसमें बर्न है, फायर बाहर आता है, राइट, फ्लेम पकड़ लेता है, राइट, वो बर्न होता है, हैव यू सीन दैट, और यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट, कि नींबू से आग निकल रहा है, राइट, तो उसमें क्या होता है, लेमन के अंदर वो सोडियम छुपा होता है, लेमन के अंदर सोडियम रहता है, और सोडियम जब तक लिक्विड के अंदर रहता है, लेमन के मतलब जूस के अंदर रहता है, उस लिक्विड के अंदर रहता है, एसिड रहता है, तो अंदर रहता है, तो वो रिएक्ट नहीं करता है, जैसे ही लेमन को ओपन करते हैं, वो ओपन करते हैं हवा में, और सोडियम किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के मॉइस्चराइजर के कांटेक्ट में आता है, इट कैचेस फायर, it catches fire and sodium starts burning and everyone thinks, oh, lemon se aag nikal diya, no, that is not science, that is not a magic, that is definitely a science, that is a basic property of the element, because sodium is very very reactive, sodium is very very reactive and it catches fire when it comes in open, when it comes in an open area, okay, atmosphere के साथ moisture के साथ react करके वो burn होता है, तो सोडियम, पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसे ही याद रखना, आयरन, यहां पर हियर आयरन, ये देखो आयरन की रिएक्टिविटी देख लो, हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन, मैंने बोला कि मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन नॉन मेटल्स, metals are more reactive than non metals and hydrogen is non metal, but hydrogen क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना पड़ता है, हाइड्रोजन gives the electron, yes Ajit, you can do that, hydrogen gives the electron, hydrogen, yes it will be safe Ajit, but you will have to be very careful because it catches fire, okay, so I'm saying hydrogen is non metal but it gives the electron, it donate करता है एक इलेक्ट्रॉन को, that's why it is kept it with the metal series, मेटल सीरीज के साथ मैंने हाइड्रोजन को रखा है, एंड हाइड्रोजन इज रिएक्टिव हियर, हाइड्रोजन इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कैन यू सी, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर हियर, ओके, सो याद रखना, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज इट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बिकॉज इट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज, अब याद रहेगा, अगर अभी आई विल शो यू विद द एग्जांपल्स एज वेल, कि जैसे जो भी एलिमेंट दिखेगा, हाउ विल यू डिफाइन, हाउ विल यू डिसाइड वेदर दे विल रिएक्ट विथ विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे पता चलेगा आपको, ये सीरीज से पता चलेगा, यू विल जस्ट हैव टू रिमेंबर रिएक्टिविटी, किस बेसिस पे रिएक्टिविटी, तो याद रहेगा सभी को, राइट, इजी है काफी, आई होप यू विल रिमेंबर दिस, इफ यू आर क्लियर विद दिस देन आई विल गो अहेड, लेट मी नो क्विकली, yes guys, I'm seeing not all of you are responding, if you don't understand anything please ask, okay,
विच वन आकाश, विच मेटल? एक और चीज देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू हियर। अच्छा बताओ आप आयरन जो है, लेड, जो आयरन यहाँ पर देख रहे हो आयरन है, इज क्वाइट रिएक्टिव, बिकॉज आयरन काफी ऊपर है तो रिएक्टिव होता है। और सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड आर हियर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड आर हियर, एंड वी एज्यूम कि दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, these are very less reactive, okay, these are very less reactive in nature, बहुत कम reactive है। that is why we wear gold ornaments, that is why we wear gold ornaments, not the iron ornaments। आयरन के अगर आभूषण जो है, ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी है, अगर आयरन की ज्वेलरी पहनेंगे तो वो रिएक्ट करेगा मॉइस्चर से, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी वहां पर, रस्टिंग हो जाएगी। एंड गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, तो गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करेगा, जब बहुत कम रिएक्ट करेगा, बहुत कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, इसीलिए वो रस्टिंग नहीं होती। गोल्ड में क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती, प्लैटिनम में रस्टिंग नहीं होती, सिल्वर थोड़ा बहुत रिएक्ट करके ब्लैक पड़ जाता है, लेकिन गोल्ड वगैरह कम, बहुत कम रिएक्ट होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई द ऑर्नामेंट्स गोल्ड के बनाना ज्यादा इजी रहे देन द आयरन एंड ऑल, बिकॉज वी नो वो रिएक्ट करके क्या करेगा, वहां पर क्या करेगा, रस्ट हो जाएगा। काफी ये भी रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, अभी क्लियर है? मैंने क्यों बताया रिएक्टिविटी कैसे पता चली हमें? रिएक्टिविटी पता चलती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से हमें रिएक्टिविटी पता चलती है कि कौन एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट करेगा, दैट विल रिएक्ट फास्टर, तुरंत रिएक्ट करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और किसी एलिमेंट से बॉन्ड बना लेगा, राइट? सो इज दिस क्लियर हियर टिल हियर? जल्दी से बताइए मुझे, क्लियर है पक्का अच्छे से? सो आई विल गो अहेड, एवरीवन, आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीवन गाइस, आर वी क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट आस्क, ओके, great, let's go ahead, okay, and I have a list of a few non metals also जो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज है। हमें ऑल 118 एलिमेंट्स का नहीं जानना है, हमें फ्यू एलिमेंट्स का ही जानना है अभी के लिए, फॉर दिस ईयर ओनली, फॉर दिस सिलेबस। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ नॉन एलिमेंट्स, सॉरी नॉन मेटल्स एज वेल। तो आई हैव प्रिपेयर्ड हैलोजन्स। हैलोजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर रिएक्टिव non-metals. This series is called reactive non-metals. These are reactive non-metals, okay, these are reactive non-metals. One second. वैसे नॉन मेटल बहुत कम रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स बहुत कम रिएक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन डेली लाइफ, बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, okay, but this series halogen is reactive non-metals and that's why it is given as a name halogen, because halogen means Greek word है, hal मतलब होता है salt, hal मतलब होता है salt, so ये react करके acidic salt बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट, ठीक है, जलने के बाद, मतलब रिएक्ट करने के बाद, कहीं पे भी रिएक्ट करने के बाद, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन। तो हेल का मतलब होता है सॉल्ट, एजन मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ओके, हैलोजन, दिस इज सॉल्ट, ये सॉल्ट बनाते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, एंड दे रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, दे फॉर्म द सॉल्ट। सॉल्ट खाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाने वाले सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो इनका राख निकलता है ना, ऐश, कोई भी रिएक्शन करने के बाद जो भी इनका प्रोडक्ट आता है वो एसिडिक नेचर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है ना, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। ऑक्साइड जो बनता है, इनका जो रेसिड्यू प्रोडक्ट बनता है वो एसिडिक होता है, सो इट इज कॉल्ड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। सो दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस, ओके, हैलोजेंस। तो हैलोजन में फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है। यहाँ पर याद रखना डाउन द ग्रुप इसलिए हम नहीं जा रहे बिकॉज ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल में कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, तो इसलिए फ्लोरीन फटाफट अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेगा, याद आया? नॉन मेटल्स में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, डाउन द ग्रुप, ध्यान कंफ्यूज नहीं होना है कि डाउन द ग्रुप है तो ज्यादा बढ़ेगी, नहीं, नॉन मेटल्स है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, मतलब विच एलिमेंट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फास्टर, और कौन अट्रैक्ट जल्दी करेगा, जिसको कम इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है,
एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना फ्लोरीन को, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन फटाफट जल्दी से मतलब अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेगा। बाकी को आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी रिएक्टिविटी, उनको कम धीरे से मतलब स्लो रिएक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज उनको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने, तो उनको टाइम लगेगा। ओके, सो आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव in this series, halogen series, and fluorine is the most reactive in halogen series. क्लियर है? Are we clear? Guys, I have taken the electronegativity and electropositive example for this series previously also. कई बार ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है? चलिए, now let's understand this with the help of some examples and get this completely cleared. Okay? कुछ एग्जांपल्स लेके भी समझते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इसको कि क्या है एक्चुअली, ठीक है? चलिए, कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं अब हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इसको। ओके, नाउ एग्जांपल इज हियर। सो Zn जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम रिएक्शन करा रहे हैं, समझिएगा, ठीक है? जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराना है हमें। जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड इसी को बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। Okay, I'll just stop sharing and I'll use the whiteboard now. Okay, make sure you are able to see the board here. Yes, Akash, they have tendency to lose more electrons, that's why they are more reactive than non-metals. Yes, Akash, not देखो, जो lose करता है वो ज्यादा ही reactive होगा than the attracting ones. Lose करना ज्यादा easy है, donate करना ज्यादा easy है than the taking. So that's why metals are more reactive than non-metals, because they donate and non-metals take. तो non-metals को ढूंढना पड़ता है किसको देना है, right? ऐसे समझो। चलो एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल क्या था? जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन देखनी है, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आप ये आगे पढ़ोगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, और अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड इट एज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इनकी रिएक्शन में क्या होगा? अब जानते हो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड याद आया, A प्लस BC का रिएक्शन हो रहा है, तो कोई ना कोई एक metals, Divya is saying she has read somewhere that in the reaction metals can replace the metals and similarly non-metals. क्योंकि metals क्यों metal को displace करेंगे? Because they are going to donate. They are going to donate. या तो ये ज्यादा अगर जल्दी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो ये किसी और मेटल से डोनेट रिप्लेस कर देगा, राइट? बट ऐसा आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज ट्रू फॉर ऑल, राइट? ओके, we'll see that, don't worry. Now let's understand it more. ऐसा तो नहीं है कि जिंक मतलब कहने का मतलब कि what metals will replace metal only. I don't think so, ऐसा that is true for all, like yeah. Okay, चलिए let's understand it now more. Metals cannot displace non-metals. I really don't think so. Let's see. अभी पता चल जाएगा, चलो देखते हैं। जिंक अब देखो कैसे डिस्प्लेस कर पाते या नहीं कर पाते, अभी समझ जाएंगे। हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में ऐसा कोई डिफरेंस है। आई थिंक मेटल्स कैन रिप्लेस नॉन मेटल्स। इफ यू हैव एनी पॉइंट डेफिनेटली शेयर इट विद मी, I'll check that. Okay, now zinc is a metal. Okay, जिंक इज अ मेटल, याद रखिए जिंक इज अ मेटल, जिंक एक मेटल है, ठीक है? और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। जिंक बहुत रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, यहां पर जिंक क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इनकी रिएक्टिविटी की बेसिस पे क्या बन जाएगा? जिंक जो है, जिंक विल रिप्लेस क्लोरीन, और क्या बनेगा? सॉरी, जिंक विल रिप्लेस हाइड्रोजन, नॉट क्लोरीन। समझिए एक लेट्स अंडरस्टैंड।
तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर से मैं समझाता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने में, ठीक है? ओके, if I explain you this with the help of atomic number, then it will be really easy for all of you to understand better. Okay, now zinc's atomic number is 30, so its uh, electronic configuration will be 2 8 18 2. Okay, yeah, hydrogen is 1 and chlorine is 17, so that is 17 और 1, तो इसका वैलेंसी तो 1 रहेगा, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 7, दैट इज 1 ओनली। नाउ देखो, अब देखो इसको जिंक को दो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 होगी डोनेट करने की, राइट? इट्स वैलेंसी विल बी 2, तो ईदर इट विल रिप्लेस क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन क्लोरीन में ये हाइड्रोजन क्या, यस गाइस, यस दिव्या यू आर राइट, मेटल विल रिप्लेस मेटल ओनली, metal will replace metal will replace metal only, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर शेयरिंग दिस, आई थिंक दिस वाज रियली ग्रेट। एंड non metal will displace, I will not say replace, I will say displace non metal only, नॉन मेटल ओनली, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल विल डिस्प्लेस मेटल ओनली एंड नॉन मेटल विल डिस्प्लेस नॉन मेटल ओनली। सिंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, सिंस हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है बिकॉज इट डोनेट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बिकॉज इट डोनेट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इट डोनेट्स, तो जिंक या हाइड्रोजन में से कोई एक ही प्रोडक्ट के साथ जाएगा, जिंक या हाइड्रोजन में से कोई एक ही प्रोडक्ट के साथ जाएगा। सिंस यहाँ पर क्लोरीन क्या है, डबल बॉन्ड का एलिमेंट है, डबल बॉन्ड, तो क्लोरीन के लिए इजी होगा जिंक के साथ रिएक्ट करने में। एंड जिंक इज मोर, देखो यहाँ पर लिस्ट में देखो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। लिस्ट में देखो जिंक पहले आ रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन बाद में आ रहा है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक Zn, तो 2 है ना, यहाँ पर 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो क्लोरीन का भी कितने बॉन्ड लगे, 2 लगे, तो ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, उड़ जाएगी, दिस इज हाउ इट विल फॉर्म। Zn ने H को रिप्लेस कर दिया, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एंड ZnCl2 इज फॉर्म्ड, एंड क्लोरीन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, विल बी रिलीज्ड इन द एयर, ओके, बाहर आ जाएगी वो। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, अभी ये आई थिंक ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा इस एग्जांपल से, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड इट अ लॉट बेटर, ओके, मोर एग्जांपल्स लेके करते हैं, समझते हैं, देखिए, ठीक है, थोड़े और एग्जांपल लेते हैं। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं, कहां पर दिलीप 18 बोलो, आप बोल रहे हो 18 आएगा, No, Ajit, I have written here clearly, metal will displace metal only and non-metal will displace non-metal only. But hydrogen क्या है? Hydrogen is a non-metal, but hydrogen का जो nature है वो electropositive है. Hydrogen has an electropositive nature. I will show you this here. Once again, I am showing you that you again here, guys. Please be focused, okay? If you ask me again and again one thing only ki hydrogen will not zinc will not replace chlorine, then definitely you are not focused in class. अभी मैंने कहा कि अभी कहा यहाँ पर, once again, अभी कहा यहाँ पर कि हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इसीलिए वो इलेक्ट्रो मेटल्स की सीरीज में रखा गया है। यू कैन सी हियर हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, राइट? सो हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो इट इज केप्ट विद द मेटल। एंड जिंक, यहां पर देखो, लुक हियर, वेट, आई जस्ट क्विकली चेंज द कलर, look here, zinc is in the zinc is above
than hydrogen. That means zinc is more reactive than hydrogen. Zinc is more reactive than hydrogen. Is this clear? तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है. एंड रिमेंबर मेटल्स विल रिप्लेस मेटल्स ओनली एंड नॉन मेटल्स विल रिप्लेस नॉन मेटल्स ओनली. Is that clear? So I can take more examples now further. Guys, is that clear for everyone? Guys, can we have more responses in the chat box? Perfect. Okay, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेटल्स विल रिप्लेस मेटल्स ओनली एंड नॉन मेटल्स विल रिप्लेस नॉन मेटल्स ओनली. याद रखिए, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है बिकॉज इट डोनेट्स, दैट्स व्हाई वो मेटल्स के साथ रिप्लेस होता है. ठीक है, डिस्प्लेस होगा. इन दिस केस यहां पर Zn, in this case Zn is more reactive than hydrogen and that's why it has replaced hydrogen. That's why it has replaced hydrogen and it made zinc chloride. Okay, Zn is more reactive than hydrogen, that's why it has displaced hydrogen here and the product formed is zinc chloride. Product form is zinc chloride and hydrogen is released. Okay, and this is called displacement reaction and this is called our displacement reaction. We are going to take a few more examples and get this completely clear. Okay, बहुत अच्छे से कुछ और examples लेके हम समझते हैं और इसको बहुत अच्छे से clear करते हैं. ठीक है, because this is very important. Okay, so I'm going to take more examples here, so just stay with me. Next example we are going to take this. अब चलिए समझते हैं पोटेशियम और आयोडीन. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड. देखो समझो, बैलेंस इक्वेशन हम बाद में, हमें आता है बैलेंस करना इक्वेशन को, तो वी कैन डू दैट after understanding the equation only. Okay, so don't worry about balancing the equation. Okay, I won't say ki you should be worrying about balancing the equation, just remember that. Okay, now see, चलिए अब इसको समझते हैं. ठीक है, तो फ्लोरीन पोटेशियम है, दिस इज पोटेशियम, दिस इज आयोडीन and this is chlorine and this is chlorine. अब देखिए क्लोरीन और आयोडीन दो नॉन मेटल्स हो गए. यहां पर ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है एक मेटल का है और एक नॉन मेटल का प्रोडक्ट है, राइट. पोटेशियम इज अ मेटल एंड द क्लोरीन इज नॉन मेटल. तो हियर मेटल तो है नहीं ये, तो पोटेशियम विल नॉट बी रिप्लेस्ड. पोटेशियम डिस्प्लेस नहीं होगा, ओनली क्लोरीन नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा. तो या तो आयोडीन डिस्प्लेस करेगा क्लोरीन को या तो क्लोरीन डिस्प्लेस करेगा आयोडीन को. चलो बताओ जरा, विच इज मोर रिएक्टिव, आयोडीन or chlorine? In both of them, which is more reactive, iodine or chlorine? Which is more reactive, guys? Which is more reactive? कौन ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम और क्लोरीन? Guys, which is more reactive? Okay, Abhishek is saying chlorine. Anyone else? Sorry. Which is more reactive, guys? Guys, is everyone there? Okay, let's see. डेफिनेटली फ्लोरीन. अभी हमने बात किया कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन बिकॉज क्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट देन आयोडीन, सो इट विल रिप्लेस. सो क्लोरीन विल रिप्लेस आयोडीन. सो हियर द क्लोरीन विल रिप्लेस आयोडीन. यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर K विल रिएक्ट विथ Cl. Okay, potassium will react with Cl and iodine is a diatomic, so 2.
और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा, 2Kl थे यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2Kl थे और यहाँ पर 2 क्लोरीन थी, तो हमने बैलेंस करने के लिए ये 2 यहाँ पर कर दिया, तो ये आयोडीन है सर, और 2 आयोडीन थे, तो आयोडीन इज बैलेंस्ड ही था बेसिकली इक्वेशन। तो ये ऐसे बॉन्ड होगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, ऐसे इक्वेशन बनेगी। रिप्लेस कर दिया, आया सुन में गाइस, डिड यू गेट इट? यस, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Okay, so let's take one more example as well. So here it says iron nail is placed in copper sulfate solution. Iron nail को copper sulfate solution में अगर रखा गया है, this one I have taken from your textbook only, कि iron nail को copper sulfate के solution में रखा गया है, तो how the reaction will take place, कौन किसको replace करेगा? तो Fe is iron, everyone knows Fe is nothing but the iron. Fe क्या होता है? Ferrous is iron, तो फेरस यहाँ पर Fe हो गया, और कॉपर सल्फेट में कौन किसको कैसे रिएक्शन फॉर्म होगी? चलिए टेक 1 मिनट एंड टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जल्दी से बताइए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे, तो कैसे रिप्लेस करोगे एंड व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट? यस गाइस, एनीवन, फटाफट जल्दी से, क्विकली ट्राई योर नोटबुक एंड टेल मी व्हाट विल बी फॉर्म्ड। Take a minute, everyone, and quickly let me know what will you get as product. Yes, guys, I'm waiting for the responses. Okay, Divya Singh FeSO4 plus Cu, Ajit Singh FeSO4 plus Cu. Let's see. Okay, let's see कौन किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, आप समझते हैं। Fe in the, देखिए in this list, okay, in this table, iron is here, iron is here, iron is here, and iron, copper यहाँ पर है, तो iron is more reactive than copper, so iron is more reactive than copper, iron is more reactive than copper, so that iron will displace the copper, iron will displace the copper, and the product will be formed as, iron will replace the copper and the product will be formed as, कैसा बनेगा? यहाँ पर देख सकते हो जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर ब्लू और येलो करके, और यहाँ पर सेम ही था। Now it will be changed and it will be like this, blue will be separated and the red and yellow blocks will form the, and this will be the product FeSO4 plus Cu, because iron is more reactive, because iron is more reactive, because iron is more reactive than copper, right? Is that clear? काफी इजी है, समझ में आ रहा सभी को? चलिए एक और दूंगा, I'm going to put one more equation here, and if you are able to do that, then you are going to get a chocolate, okay? The question is this: copper is placed in iron sulfate solution. Copper is placed in iron sulfate solution. What will be the product? Yes, guys. Copper is placed in iron sulfate solution. What will be the product? चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, करके बताइए क्या मिलेगा आपको। याद रखना, मेटल विल रिप्लेस मेटल ओनली एंड नॉन मेटल्स विल रिप्लेस नॉन मेटल ओनली। तो कॉपर को सल्फेट से मत कर देना, बिकॉज सल्फेट और या फिर ऑक्सीजन से, बिकॉज सल्फर और ऑक्सीजन से, बिकॉज दोज आर नॉट द मेटल्स, ओके।
Metal will replace metal only, and non-metals will replace non-metals only. Yes, guys. Whoever gives the answer to this question will get a chocolate. Yes, chocolate Pakki. Whoever gives the question, answer to this one. Lakshmi is saying Fe plus CuSO4. Divya is saying it will be same maybe. Okay. Let's hear from more people. Let's hear from more people. Take 30 seconds more. Sabaz is saying CuSO4. Okay. Let's hear from more people as well. Ajit is saying CuSO4 plus Fe. Great. What else, guys? More people. People are going to get a chocolate who gives the right answer to this. Sanya, Pradum, Mahima, Karan, Ram, Akash, Khushi, Aditya, Nidhi, Aftab, Aryan. Anyone, guys? More responses here. Akash is saying same. Okay. What else, guys? Okay, I think we have enough responses. So the answer is going to be revealed, and the answer is no reaction. कोई रिएक्शन नहीं होगी because what is the reason? Because iron is more reactive than कॉपर एंड कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन आयरन. तो कॉपर जब रिएक्टिव नहीं है आयरन से ज्यादा तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. कॉपर कैन नॉट रिप्लेस आयरन हियर बिकॉज कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन आयरन. Iron is more reactive, so it will be the same only. No reaction will take place and it will be the same only. And two people have given the correct answer, Divya and Akash, and Divya was the first one to give the correct answer. She might get a chocolate. That's great. Amazing, guys. Amazing. So here copper is less reactive than iron. So copper will not be able to replace iron. So there will be no reaction taking place in this chemical reaction, in this chemical equation. Is that clear? Is that clear for everyone? So what you need to remember now is that you remember the reactivity table. So you remember the reactivity table. Is that clear for everyone, guys? Let's hear quick responses. Perfect. Thank you, Akash, Divya. For who else? Okay, that's great. Clear. चलिए आगे बढ़ते हैं. So here the displacement reaction gets over. One more I'm going to give you as a class work अभी के लिए. 2 मिनट में करके बताओ जल्दी से मुझे. Okay, जल्दी से I'm going to write it here and you have to tell me what will be the product of it. Okay. CuSO4 react. I'm typing it in the chat box. Okay, I'm typing it in the chat box. CuSO4 is reacting with lead बोलते हैं उसको, Pb को, and what will be the product? Okay, wait. Yes, if everyone can see my message. Yes, let's see who answers first. CuSO4, whoever answers first will get a chocolate. Okay, Divya saying PbSO4 plus Cu. That's great. Anyone else? Anyone else?
Okay, Lakshmi, Ajit, Aditya, very good guys. That is the perfect correct answer, and the correct answer is this only. PbSO4 since lead. Okay, Pb को बोलते हैं lead बोलते हैं, ठीक है, याद रखना. It is called lead. लेड, ये याद रखना, रिएक्टिविटी को रोकने के काम में आता है. अगर आपको लगे कहीं पे भी या सिंस पीबी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, reactive that copper, I'm typing it out, okay, so everyone can have the answer as well. Copper, so क्या हो जाएगा रिएक्शन में, CuSO4 plus Pb will be PbSO4 plus Cu. That's great. So I think you all can have this answer. And yes, Divya, you will get you get 2 chocolates, and those are the virtual chocolates. I might come to Mumbai and then we can figure it out, the chocolates. Yes, but for now you are getting 2 virtual chocolates. Okay, and your chocolates are here. Just give me a second, guys. It's not done. Okay, so wait for a few more minutes and we'll complete the class. डबल डिस्प्लेसमेंट इज लेफ्ट वेरी इजी है, वो भी इजी है, 2 मिनट लगेगा, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. वेयर आर द चॉकलेट्स, आई कैन फाइंड द चॉकलेट्स, आई कैन सी द कैंडीज. ओके, मिल गया, ये लो, यू गेट 2 चॉकलेट्स. यस, यू गेट 2 चॉकलेट्स. ओके, I can only give virtual chocolates. I cannot even order it from here. Okay, that's great. So here it was no reaction, and we had, so here we go, and we finish this like displacement reaction only, not the class. Okay, class abhi baki hai. Displacement reaction, I hope for everyone it is clear. How will you replace metals ko metal se, non metals ko non metal se? So guys, is everyone clear with the displacement reaction? So we can go ahead with the double displacement reaction. Is everyone clear? Yes guys, metal displaces, याद रखना है, metal displaces metal only. Okay, चलिए, and here we come to the डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है, सिंपल सा पहले मैं बता देता हूं, छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है. इसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी के बेसिस पे नहीं करते हम, चार्जेस के बेसिस पे करते हैं. आयंस, याद है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हमें आता है किसको पॉजिटिव चार्ज देना है, किसको नेगेटिव चार्ज देना है. जो डोनेट कर रहा होता है उसको पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स को टेक कर रहा होता है, which element is taking the electrons, that will get negative charge, right? That will get the negative charge, right? And otherwise it will get a positive charge, right? So यहाँ पर double displacement reaction है. I think I think we can do this in the next class only, or whatever everyone says.